Hi students, I welcome all of you in online classes. We are come back in class 7th. In previous lesson we learned about the different types of substance and their properties as like bases and as like acidic. Different types of properties. And we also learn that how can we find out the different types of materials and how can we find out they are acidic or basic. Dear students, first of all we learn all the substances they are sure in test they all are acid, and we also learn in test they all are some bitter and like soapy when we touch them. So they all are we call it basic. And we also learn all the material we cannot test them. So students, we done some practically test for acid and basic substances. We also learn about the litmus and we also learn the other indicator of we can find out about their properties as like basic and acid properties of different types of substances. Dear students, on 2 days now I tell to you as an indicator and I show to you some practical. We done some practical in this session and find out the acids and basic about their properties from practically. So dear students, you learn this types of flowers surrounding to you. It's a bougainvillea plant, some leaves red colored. Okay students, bougainvilleas. And you also choose a China rose. In botanical name it's called Hibiscus sinensis rosa. It's a red colored flower. You also use China rose. So first of all, we rubbed this flower well this time, and I throw it in a bowl well, and we take juice. I also involve some water in and find out some juice from these plant red color. Dear students, it is also we use as a indicator for find out the properties of acid और बेसिक. एसिड और बेसिक के बारे में पता लगाने के लिए इसको भी हम इंडिकेटर के रूप में उपयोग में ले सकते हैं. जैसे in my table there are many material here. It's a lime water, sodium bicarbonate. I have a shampoo here. I show to you different types of material here. I find out these material properties as like basic and acid from this indicator. और ये इंडिकेटर हमें प्राप्त कैसे किया है? इनको मसल करके इनके अंदर से जूस निकाल करके ये रेड कलर इंडिकेटर प्राप्त किया है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी ऑल नाउ हमें ये पता होना चाहिए कि ऑल द एसिड क्या करते हैं? ऑल द एसिड, जितने भी एसिड होते हैं वो ब्लू कलर्ड एनी फ्लावर पिगमेंट एंड दे चेंज इनटू रेड. अगर रेड कलर होता है तो वो सभी एसिड होते हैं, और अगर कलर चेंज होकर के ब्लू बन जाता है तो वो सभी है वो बेसिक है. ओके स्टूडेंट्स, तो here are some material
I practically show to you in this test tube baking soda I use and lime water, some lime, chuna, calcium carbonate, its basic substance, इसके अंदर मैं ये रेड कलर पिगमेंट है वो डालता हूं। इट्स कलर ब्लू, सब चेंज है ना, ये रेड है, ये सम लाइक ब्लू हो रहा है, ब्लू हो रहा है ना। इट मीन्स इसके अंदर जो सब्सटेंस मैंने यूज में लिया है उसका जो करेक्टर है वो है बेसिक है। ब्लू हो रहा है इसका मतलब क्या है, बेसिक है। नाउ अनदर एक्सपेरिमेंट शो टू यू, हेयर आर सम कर्व, मैं इसके अंदर कुछ कर्व डाल रहा हूं, हेयर आर कर्व है, और कर्व के अंदर मैं डाल रहा हूं दिस इंडिकेटर, कलर गुलाबी हो रहा है ना, इट्स मीन्स रेड हो रहा है ना, पिंक कलर्ड हो रहा है ना, रेड कलर। तो वी फाइंड आउट दैट इन कर्ड कौन से जो कर्ड है वो एसिडिक होता है, एसिडिक होता है, अम्लीय गुण होता है। डियर स्टूडेंट, ये जो सम ब्लू हुआ है ये हमें एक ब्लू पिगमेंट मान लेते हैं इसे, और इसके अंदर हम सम कर्व डालते हैं। क्या इसके अंदर कर्व डालेंगे तो रिपीटली इट चेंज इनटू रेड, क्या ये वापस रेड होगा? वी फाइंड आउट। आई मिक्स इन दिस कर्व सम रेड हो रहा है डियर स्टूडेंट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, वी कैन फाइंड आउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ materials surrounding us as like lemon, detergent, our soap, baking soda, lime water, curd, milk, and different their properties as like acid और basic। इस प्रकार प्रैक्टिकल करके हम पता लगा सकते हैं। ये रेड कलर हो रहा है देखो, और इसके अंदर मैं वापस लाइम वाटर मिला रहा हूं, ये कलर चेंज हो गया देखिए। तो डियर स्टूडेंट्स, वी फाइंड आउट द लाइम वाटर इज लाइम इज चूना है वो बेसिक होता है। तो डियर स्टूडेंट, इस प्रकार हम पता लगा सकते हैं कि एसिड और बेसिक के कैरेक्टर है वो क्या होते हैं। अब आगे मैं बताना चाहता हूं आपको। नाउ आई कैन टेल टू यू दैट व्हाट हैपन व्हेन इक्वल समान मात्रा में जब हम एसिड और बेसिक को मिला देंगे, तो when we mix acid and base, we find out salt, water, and produce evolution energy. These type of reaction we called it neutralization. We called it neutralization. Neutralization means those types of material there are not a acidic character and not a basic character. उनमें ना तो बेसिक कैरेक्टर होते हैं और ना ही एसिडिक कैरेक्टर होते हैं, तो उन सब को हम कहते हैं न्यूट्रल सब्सटेंस, उदासीन पदार्थ, एज लाइक साल्ट। जब हम ब्लू के अंदर कोई भी सब्सटेंस मिलाएंगे देयर कलर नो
चेंजेस लाइक ब्लू ही रहेगा, और रेड के अंदर मिलाएंगे रेड ही रहेगा, यानी नो एनी चेंज। उनमें ना तो अम्लीय गुण होते हैं और ना ही सारे दीज ऑल टाइप ऑफ सब्सटेंस वी कॉल्ड इट न्यूट्रल सब्सटेंस। एंड व्हेन वी मिक्स एसिड एंड बेसिक make a salt plus water and evolution energy, हीट उत्पन्न होती है। जब एसिड और बेस को मिलाती है तो क्या उत्पन्न होती है? हीट। एंड दिस टाइप ऑफ रिएक्शन वी कॉल्ड इट एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं इसे। Okay students, now I tell to you daily uses of neutralization in our life. Dear students, indigestion की प्रॉब्लम होती है, तो what do you mean indigestion? In our food, food come in our stomachs and our stomachs increase acid, we call it hydrochloric acid, and you learn about it in second chapter. तो when more increase hydrochloric acid, the food indigested and painful for us, we use milk of magnesia, and milk of magnesia react with acid and make a neutralization or we relieve. Okay students, it's first example. And second example, whenever ant means चींटी bite, जब वो काटती है तो bite inject in our body फॉर्मिक एसिड इंजेक्ट करती है। तो व्हेन रिलीफ वी यूज एनी टाइप्स ऑफ बेसेज, को हम उनके ऊपर पेस्ट करते हैं, रब्स करते हैं, रगड़ते हैं, तो वी रिलीफ। तो इट्स आल्सो फॉर्मिक एसिड का जो इफेक्ट होता है वो एनी बेसेज से न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है और हमें आराम मिलता है। एंड नेक्स्ट एग्जांपल इज in our field soil treatment, when our soil become acidic, more acidic, तो they cannot product crop, तो अच्छी प्रोडक्ट नहीं होती है, बेटर प्रोडक्ट नहीं होता है क्रॉप का। तो वी यूज बेसिक सब्सटेंसेज एंड दे हमें खेत के अंदर उनको डालती है, तो जिससे ओवर सोइल है वो न्यूट्रलाइजेशन होता है और हमें उससे अच्छा प्रोडक्ट मिलता है। एंड नेक्स्ट अदर एग्जांपल ऑफ द न्यूट्रलाइजेशन इन द डिफरेंट टाइप ऑफ फैक्ट्रियाज प्रोड्यूस्ड एसिड, एंड बिफोर दीज एसिड useless acid and acidic wastage they produce, and these acidic wastage before किसी भी नदी में नाले में उनको डालने से पहले क्या करती है? न्यूट्रलाइजेशन करना पड़ता है। सम बेसिक मिला करके उनका न्यूट्रलाइजेशन करना पड़ता है। व्हाई? क्यों? क्योंकि these acids are very harmful for those animals they live in different types of pond, river, water sources, और वाटर सोर्सेज के अंदर वो पानी डालती है तो उनके अंदर से एसिडिक होता है, तो वो उनके लिए बहुत ही नुकसानदायक होता है, हार्मफुल होता है। इसीलिए बिफोर उनको डालने से पहले उनका क्या किया जाता है? न्यूट्रलाइजेशन किया जाता है। तो दीज ऑल आर इन एवरीडे लाइफ यूजेज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इन आवर लाइफ। ओके स्टूडेंट्स, टुडे कंप्लीट आवर फिफ्थ लेसन। आज हमारा फिफ्थ लेसन है वो कंप्लीट हो चुका है। आई आल्सो प्रोवाइड यू पीडीएफ इन अर्ली सेशन में। सुबह ही आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दी थी। आपको पीडीएफ नोट्स भी अपने नोटबुक में लिखना है और ये जो वीडियो है ये भी समझना है। और आज आपको एक और काम देना चाहता हूँ कि डियर स्टूडेंट्स, दिस टाइप ऑफ प्रैक्टिकली आई शो टू अमंग यू, ये आपको फ्लावर कहीं भी उपलब्ध हो जाती है, मिल जाती है, तो आपको इसमें से रब करके रगड़ करके सब जूस निकालना है और जूस के साथ में कुछ प्रैक्टिकल अपने घर पर करना है और प्रैक्टिकल करके उसको एक छोटा सा फोटो या सिर्फ 30 सेकंड 15 सेकंड मैक्सिमम 1 मिनट का एक वीडियो बना करके मुझे भेजोगे। मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि हमारे प्यारे बच्चे बहुत अच्छी मेहनत कर रही है, हमारे प्यारे बच्चे बहुत ज्यादा पढ़ रही है। हमें आप पर वी प्राउड ऑल ऑफ यू, हमें आप पर गर्व महसूस होगा बिकॉज यू ऑल आर लर्नर स्टूडेंट्स, गुड लर्नर स्टूडेंट्स। Okay students, goodbye, thanks all of you, goodbye.